قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل دن 11 بجے طلب۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایڈوائس پر طلب کیا۔ قومی اسمبلی ہال میں منعقدہ اجلاس میں کابینہ کے متعلقہ ارکان، تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز اور ان کے نامزد نمائندگان شرکت کریں گے۔ اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ مستحکم ہوتی معیشت پر سرمایہ کاروں کا بڑھتا ہوا اعتماد۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 750 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,16,300 سے زائد پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے چکوال میں واقع راجیان 11 ہیوی آئل ویل نے تیل کی پیداوار کا آغاز کر دیا۔ کنویں سے یومیہ 1000 بیرل تیل کی پیداوار متوقع ہے۔ دہشت گردی کے واقعات کو سیاسی رنگ دینا انتہائی قابل مذمت۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ریاست کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے عناصر غیر ملکیوں کے اعلی کار ہیں۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے۔ کے پی حکومت امن و امان پر توجہ دینے کی بجائے وفاق کے کام میں مداخلت کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ زاہد بخاری کی نیوز کانفرنس۔ رمضان نگہبان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں میں 30 ارب روپے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ 27 لاکھ سے زائد افراد میں پے آرڈر تقسیم کیے جا چکے۔ فی خاندان 10,000 روپے کے پے آرڈر 15 اپریل تک کیش کرائے جا سکیں گے۔ رمضان المبارک میں ضروری اشیاء کی قیمتیں برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کا معاملہ۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 16 افراد کو کل دوبارہ طلب کر لیا۔ علیمہ خان ابھی تک جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئی، ان کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر رؤف حسن اور شاہ فرمان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ رضاکارانہ واپسی میں 15 دن رہ گئے۔ اس دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے بات کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کل صدر پوٹن سے ٹیلی فونک گفتگو میں روس یوکرین کی جنگ کے خاتمے سے متعلق بات چیت کریں گے۔ وہ پوٹن پر جنگ بندی کی 30 دن کی تجویز پر عمل کرنے پر زور دیں گے۔ امریکی میڈیا یمن میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کے فضائی حملے، 53 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی۔ دہشت گردوں کا وقت ختم، اب ان کے ساتھ وہ ہوگا جو پہلے نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کا حوثی ملیشیا کے خلاف فیصلہ کن فوجی آپریشن کا حکم۔ حوثی گروپ کا امریکہ کو بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ فریقین ایک دوسرے پر حملے فوری بند کریں، اقوام متحدہ۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 کرکٹ سیریز دوسرا میچ کل ڈونیڈن میں کھیلا جائے گا۔ کمیٹی میچ کے لیے کرائسٹ چرچ سے ڈونیڈن پہنچ گئی۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل۔ پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے 9 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی تھی۔ پاکستان سپر لیگ کا 10واں ایڈیشن ٹرافی کا سفر جاری۔ کراچی کے بعد لاہور میں ٹرافی کی رونمائی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم اور خواجہ ہاکی اکیڈمی میں ٹرافی نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ بچوں نے پی ایس ایل ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنائیں۔ لومینارا ٹرافی 29 مارچ تک ملک کے 11 شہروں کا سفر کرے گی۔ پی ایس ایل 11 اپریل سے 18 مئی تک 4 شہروں میں ہوگی۔ برطانیہ کے جیک ڈریپر کا پہلا اے ٹی پی ماسٹرز 1000 ٹائٹل۔ انڈین ویلز ٹورنامنٹ جیت لیا۔ کیلیفورنیا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں ڈریپر نے ڈنمارک کے ہولگر ریون کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دی۔ ڈریپر کے کیریئر کا یہ پہلا بڑا احساس ہے۔ کامیابی کے بعد جیک ڈریپر نے پہلی مرتبہ رینکنگ میں ٹاپ 10 میں بھی پوزیشن پکی کر لی۔
present to you your 2025 BNP Paribas Open Men's Singles Champion, Jack Draper. अमेरिकन मेजर सॉकर लीग लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी ने अटलांटा को हराकर तीसरी फतह अपने नाम कर ली। मियामी ने मेजबान अटलांटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। मेसी ने रेगुलर सीजन का पहला गोल किया। फतह के बाद इंटर मियामी की टीम पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई। वैंकूवर की टीम पहली पोजीशन पर काबिज। Short corner ball delivered to the back post. As difficult of a header you will ever have. The momentum, your body away from. मोटो जीपी चैंपियनशिप की दूसरी रेस अर्जेंटीना ग्रां प्री 6 मरतबा के चैंपियन स्पेन के मार्क मार्कोएस की लगातार दूसरी कामयाबी, एलेक्स मार्कोएस की दूसरी, इटली के फ्रांको मार्बदेली की तीसरी पोजीशन। मोटो 2 में बर्तानिया के जैक डेक्सन पहले नंबर पर रहे। मोटो 3 रेस स्पेन के एंजल पिक्योरेस के नाम रही। इंसान 3 किस्म के होते हैं। पहला बादशाह, दूसरा वो जो बादशाह से डरता है, और तीसरा वो जिससे बादशाह डरता है। मुझे उस सुरूज नामी शख्स के बारे में सब कुछ। और पाकिस्तान में तुर्की के ड्रामों की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा। पीटीवी होम और डिजिटल पर रमजानुल मुबारक के महीने में मारूफ तारीखी तुर्की ड्रामा बारबारोसा उर्दू डबिंग के साथ नश्र किया जा रहा है। नाजरीन की जानिब से भरपूर पजीराई। बारबारोसा का इंतखाब नाजरीन के लिए एक मुस्बत तफरीही और तालीमी तजुर्बा करने का वक्त ना आ जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज अस्तम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की एडवाइस पर तलब किया है, जिसमें अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क में सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी असम्बली हॉल में मुनक़दा इजलास में काबीना के मुताल्लिक़ अरकान, तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर और उनके नामजद करदा नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के बोर्ड अरकान मुजीबुर रहमान शामी, शाहिद हामिद और अहमद बिलाल महबूब ने लाहौर में मुलाकात की। बोर्ड अरकान ने वज़ीर आज़म को पिलडट के उमूर के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरी के हवाले से काम करने पर पिलडट के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। और खबर है कारोबारी दुनिया से। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी देखने में आ रही है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। जी ज़मीर, आगाह कीजिएगा, स्टॉक मार्केट की क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से क्या अच्छी खबरें हैं आपके पास? जी, कारोबारी हफ्ते का पहला रोज है और पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कामयाब रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड के तहत जो $1 अरब मिलना था वो जल्द मौसूल हो जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से $1 अरब मिलना था उस पर भी मुस्बत पेशरफ्त जारी है, जिसके बाद ये कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजमूई तौर पर $2 अरब मिल सकते हैं। इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे भी पड़ रहा है। सुबह से स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 785 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद
मार्केट 1,16,000 की हद अबूर करते हुए 1,16,321 पर ट्रेड कर रही है। न सिर्फ ये बल्कि हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक में भी डॉलर की जो वैल्यू है उसमें 30 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर इस वक्त 269 रुपए और 92 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, जबकि गुज़िश्ता वीक इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए और 22 पैसे पे बंद हुआ था। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की मौशी पॉलिसी की वजह से तमाम मौशी अशारिये बेहतरी की तरफ गामजन है। महंगाई की शरह में नुमाया कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से शरह सूद भी जो है वो कम होता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मौशी सरगर्मियां जो है वो अपने अरूज पे हैं। अगर इन पॉलिसीज का तसलसल जारी रहे तो मौशी इस्तेकाम जल्द हासिल होगा और न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के तमाम जो मौशी अहदाफ हैं वो भी हासिल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने चकवाल में वाक़े राजियान 2 हैवी ऑयल वेल में तेल की पैदावार का आगाज कर दिया है। हैवी ऑयल वेल 2020 से ताअत्तुल का शिकार था, जिसे जदीद मसनूई लिफ्ट सिस्टम की मदद से दोबारा फाल कर दिया गया है। 3774 मीटर गहराई में दबे वसाइल को बरोए कार लाना OGDCL की बड़ी कामयाबी है। नए दरियाफ्त शुदा कुएं से रोजाना 1000 बैरल तेल की पैदावार मुतवक्का है। SAFC के ताउन से तेल और गैस के मंसूबे बहाल हो रहे हैं, जिससे मुल्क की तवानाई खुद किफालत की जानिब गामजन है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने दहशत गर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। PTI के सोशल मीडिया पर रियासत के खिलाफ जहर उगल रहा है। लाहौर में मुआविन खुसूसी सलमा बट के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। सूबाई हुकूमत अमन व अमान पर तवज्जो देने की बजाय विफाक के काम में मदाखलत कर रही है। सोशल मीडिया पर काम करने वाले अनासिर गैर मुल्कियों के आला कार हैं। इस तरह के वाक़यात पे पॉलिटिकल आप डिवाइड साइड पर रख देते हैं, आप अपने मुल्क के साथ खड़े होते हैं, आप अपने इदारों के साथ उनको सपोर्ट दे रहे होते हैं। पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन और वही कैंपेन जो इंडियन मीडिया कर रहा था कि उस जमात के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। ऐसे लग रहा था जैसे उनको बहुत खुशी की खबर मिल गई है, उनके लिए सेलिब्रेशन का टाइम है कि पाकिस्तान पे ये मुश्किल टाइम है। जो पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल टाइम के ऊपर यक ज़बान ना हो और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हमला है उसको सेलिब्रेट करे। आई एम सॉरी, मैं उसको पाकिस्तानी नहीं मानती। मुआविन खुसूसी सलमा बट ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों में 30 अरब रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। फी खानदान 10,000 रुपए के पे ऑर्डर 15 अप्रैल तक कैश हो सकेंगे। रमज़ान मुबारक में ज़रूरी अशिया की कीमतें बरकरार रखने के लिए इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। रमज़ान निगहबान पैकेज है जिसमें 30 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज है, जो 30 लाख घरानों तक 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर पहुंचाए जाने थे, जिसमें से अब तक हमारे 27,23,000 पे ऑर्डर्स डिलीवर हो चुके हैं और उसमें से 22,64,000 पे ऑर्डर्स जो हैं वो लोग कैश वसूल कर चुके हैं पंजाब भर में। तो अभी अकाउंट्स के ज़रिए लोगों ने हासिल किए वो 1,72,000 हैं सिर्फ, लेकिन जिन्होंने ब्रांचलेस बैंकिंग के ज़रिए हासिल किए वो कोई 21 लाख हैं और 4,60,000 हमारे ऐसे हैं जो अभी कैश होना बाकी है, जो कि अभी सिलसिला जारी है। और यही वजह है कि हमने जो इसका जो अकाउंट है वो 15 अप्रैल तक एक्टिव रखा हुआ है, ईद के भी 2 हफ्ते बाद तक, ताकि जिन लोगों को पे ऑर्डर्स मौसूल हुए हैं वो इसको हर मुमकिन कैश कराने में कामयाब हो सके। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला, JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। तमाम अफराद को बरोज़ मंगल JIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी किए गए हैं। जिन 16 अफराद को JIT ने तलब किया है उनमें फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, असलम इकबाल, हमाद अजहर शामिल हैं। तलबी के नोटिस वसूल करने वालों में आन अब्बास, शहबाज शब्बीर, वक्कास अकरम और तैमूर सलीम खान भी शामिल हैं। सिबगतुल्लाह वर्क, अजहर मशवानी, नौमान अफजल, जिब्रान इलियास, सलमान रजा, जुल्फी बुखारी, मूसा वर्क और अली मलिक को भी तलबी का नोटिस जारी किया गया है। PTI के बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। 14 मार्च 2025 को बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी किया है। तहकीकात रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से की जा रही हैं। JIT IG पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में तहकीकात कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी मुकीम, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के इनखला में 15 दिन बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 मार्च तक मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी, जबकि वापस जाने वालों के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात के इंतजाम किए गए हैं।
और अब बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में पहले खबर है गजा से। गजा पर इजरायली जारियत का सिलसिला जारी है। इजरायली फोर्सेस के हमले में 3 सहाफ़ियों समेत मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद और कई जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइली हमले में 2 नौजवान शहीद हो गए। हमले में जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया गया। खान यूनिस में इसराइली टैंकों के शदीद बमबारी सभी शहादतों के इत्तलात हैं। इसराइली फौज का नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप का मुहावजा भी जारी रहा। यूनिसेफ ने गजा में बढ़ती गजाई किल्लत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। दूसरी जानिब लेबनान के जनूबी इलाके पर भी इसराइली फोर्सेस ने बमबारी की, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लेबनान की वजारत सेहत ने हलाकतों की तस्दीक की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन से बात करने का ऐलान किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि वो कल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस यूक्रेन की जंग के खात्मे से मुतालिक बातचीत करेंगे। सदर ट्रंप पुतिन पर जंगबंदी की 30 दिन की तजवीज़ पर जोर देंगे। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि यूक्रेन ने तो तजवीज़ मंजूर कर ली थी। रूस यूक्रेनी फौज को कर्सक के इलाके से बाहर निकालने के करीब है। तवानाई के मंसूबों पर भी पुतिन से बात करने का इरादा रखता हूँ। और अमरीका की जानिब से यमन में हूसी ग्रुप के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी है। ताज़ा हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी को निशाना बनाने के भी इत्तलात हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने यमनी शहर सद्दा में सिक्योरिटी चीफ को निशाना बनाया। अमरीकी हमलों में अब तक 5 बच्चों समेत 53 अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। अमरीका ने वाज़ेह किया है कि हमले हौसियों के बहरी ट्रैफिक पर हमलों की सलाहियत ख़त्म होने तक जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीका और यमनी हौसियों से हमले रोकने का मुतालबा किया है। सेक्रेटरी जनरल ने दोनों मुल्कों के दरमियान जारी कशीदगी पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि यमन में फ़ौजी मुहिमजोई से हालात कशीदा हो सकते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि यमन से तसादुम खत्ते को आग में झोंक सकता है। मशरिक़ वुस्ता में इंसानी सूरत हाल पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। हमलों के बजाय सब्र व तहम्मुल से काम लिया जाए। अमरीका के जनूब मशरक़ी रियासतों में तूफ़ान से हलाकतों की तादाद 40 से ज़ायद हो गई, जबकि मुतादिद अफराद ज़ख्मी हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात रियासत लुजियाना में हुई, जहाँ मुख्तलिफ हादसात में मुतादिद अफराद हलाक हो गए। 3 अमवात रियासत टेक्सास में हुई, जहाँ मट्टी के तूफान के सबब गाड़ी उलट गई। मुख्तलिफ रियासतों में तूफान ने दर्जनों घरों को ज़मीन बोस कर दिया और गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 100 मकामात पर आग भी भड़क उठी। अब खबर है ईरान से। ईरान ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई इख्तियार नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पैगाम पर मुतालबा किया कि अमेरिका यमनी अवाम का कत्लेआम और इसराइली नस्ल कुशी और दहशतगर्दी की हिमायत बंद करे। अमेरिकी हुकूमत को ईरान की खारजा पॉलिसी के सिलसिले में हुक्म देने का ना तो इख्तियार है, ना ही कोई इस सिलसिले में हक़ हासिल है। अब्बास अराग़ची ने यमन पर अमेरिकी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए यमन से इज़हार यकजहती किया। कुछ मज़ीद कौमी खबरें शामिल करते हैं। अरकान पंजाब असम्बली सूबे में नई नहरें बनाने पर मुत्तहिद हो गए। पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के तहत मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि पंजाब का पानी पहले ही कम है और वो भी समंदर में जाकर ज़ाया हो जाता है। बिशारत डोगर MPA PP 111 समझता हूँ कि पंजाब को ज़रूरत है। हमारा रेगिस्तान, हमारे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा और हमारा पानी जो पहले है, पहले ही कम है, बहुत कम है, लेकिन वो भी समुद्र में जाकर ज़ाया हो जाता है। मैं समझता हूँ कि पंजाब में बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जिनको पानी मिलना चाहिए और वो मिलेगा कैसे? नहरों से मिलेगा। ये नहरें बननी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को होनी चाहिए। हाँ, अगर सिंध में ज़रूरत है, बलूचिस्तान में ज़रूरत है, खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरत है तो उधर भी बननी चाहिए। मैं समझता हूँ कि पंजाब में जो नहरें बन रही हैं ये बहुत अच्छा काम है, बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए और इससे हमारा वतन खुशहाल होगा, हमारा पंजाब खुशहाल होगा। और अगर सिंध में जरूरत है तो वहाँ भी ये बढ़नी चाहिए। पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। पंजाब के अंदर बारिशें बहुत घट हुई जिहदी वजह नहरां बिल्कुल खुश्क रही। मेरी गुजारिश है कि जनाब नहरां और डैम बनाए जान, नहरां बनाई जान, क्योंकि पानी अगर नहीं है तो मुल्क सरसब्ज़ नहीं है। जनाबे वाली मैं पंजाब हुकूमत नूं पुरजोर रिक्वेस्ट करांगा कि जनाबे वाला इस मुल्क नूं सरसब्ज़ रखने लई पानी का होना बड़ा जरूरी है। और मेरी दिली दुआ कि मेरा पैगाम मौजूदा गवर्नमेंट इत्ते जरूर अमल करेगी। इस वक्त हमें शदीद पानी की हम कमी का शिकार हैं, तो हमें डैम बनाने चाहिए थे। अब हमारे पास जो भी पानी के वसाइल मिल रहे हैं, हमारे पास लाखों एकड़ अराजी अभी ऐसी पड़ी है जो बंजर पड़ी है, वहाँ हमें पानी की जरूरत है। तो हमें अपने मुल्क पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा नहरों का सिलसिला को बढ़ाना चाहिए
تاکہ وہ علاقے جو پانی کی وجہ سے ابھی تک سیراب نہیں ہو سکے وہاں پہ ہم زراعت کو فروغ دیں اور صحیح معنوں میں ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکیں۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں گے آزاد کشمیر سے۔ آزاد کشمیر سے راولپنڈی جانے والی مسافر بس کہوٹا کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس میں 5 مسافر جاں بحق ہو گئے جبکہ 4 شدید زخمی ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پاک فوج اور سول انتظامیہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن مکمل کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 مرد اور 1 خاتون شامل ہیں۔ ایک فوجی جوان ناس حوالدار عارف علی بھی زخمی ہوئے۔ پاک فوج اور ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی اور زخمیوں کی فوری منتقلی سے جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا۔ متاثرین کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں علاج جاری ہے، جہاں انہیں تمام طبی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ اور ہیروز آف پاکستان میں سے ایک اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے بانی صدر میشا کلیکشن کی CEO، پاکستان کی پہلی خواتین ہاکی ٹیم کے رکن سمینہ فاضل بھی ہیں۔ سمینہ فاضل کا کہنا ہے کہ ان کا مشن پاکستان کی معاشی ترقی میں خواتین کے کردار کو مضبوط کرنا ہے۔ Sabina Fazil. By profession, I am a fashion designer, CEO Misha's Collection, and the founder president Islamabad Women Chamber of Commerce and Industry. میں شروع سے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور آئی واز اے ویری ایکٹیو اسٹوڈنٹ ان مائی لائف۔ آئی واز دا ون کہ میں نے پاکستان کی پہلی جو ہاکی کی ٹیم تھی اس میں بھی میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں۔ مجھے جو بھی تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا تو میں اس میں کچھ نہ کچھ اپنے بچیوں کے لیے فراکس وغیرہ بنایا کرتی تھی شوق سے۔ تو پھر اس طریقے سے میرے بزنس کا آغاز ہو گیا ود دا برانڈ نیم آف میشاز کلیکشن۔ میں نے اپنی پہلی گارمنٹ فیکٹری کھولی 1989 میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے 1990 میں اپنا بوتیک بنایا مین مری روڈ چاندنی چوک پہ۔ اٹ واز دا فرسٹ وومن اون بوتیک ان پنڈی اینڈ اسلام آباد۔ میری سراؤنڈنگ میں کچھ ایسی خواتین تھیں، کچھ وڈوز تھیں، کچھ ڈائیورس لیڈیز تھیں جو کچھ کرنا چاہتی تھیں، تو میری ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ باجی آپ ہمیں کام دیں۔ جو ویجز میں اپنے ٹیلرز کو دیتی تھی وہی معاوضہ میں اپنی ان خواتین کو دیتی تھی، تو ان کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ایک تو ان کی بھی انکم جنریشن سٹارٹ ہو گئی جس سے وہ بہت خوش تھی، اور ایک مجھے بھی بڑا جو کہ میں شروع سے ہمیشہ ایک میرے اندر ایک تھا کہ میں ویلفیئر کا کام کروں۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اگر آپ کی جذبے سچے ہیں، آپ کی نیت سچی ہے، تو مطلب یہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک آغاز ہو گیا۔ بس یہاں سے پھر ایسا ہوا کہ جب میرا کام بڑھا میں ایکسپورٹ کی طرف چلی گئی، بس وہیں سے سن 2000 میں اسلام آباد وومن چیمبر کے حوالے سے میں نے سوچا، 4 سال گزر گئے تو ہمیں کام کرتے ہوئے تو بھی ہمیں پتہ چلا کہ اوہو ہم تو چیمبر ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا چیمبرز کا لاء تھا اس میں خواتین کے لیے الگ چیمبر بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ تو آپ سوچیں کہ بس میرا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت، اور پھر میں نے جو ہے ایک نیا جہاد شروع کر دیا، تو بہت مشکل سے اور بہت زیادہ محنت کے بعد کہیں جا کے جب 2007 کا لاء آیا، ٹریڈ رولز آئے، تو اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ پرمیشن ملی، تو اللہ کا شکر ہے پھر ہمیں 2009 میں ہمیں لائسنس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملا۔ چیمبر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی کام کر رہی ہیں، جن کو کاروبار کے حوالے سے کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے ان کی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے۔ میں نے ایگزیبیشن
जो है वो लगाना शुरू किए। पिंडी और इस्लामाबाद में उस वक्त बिल्कुल कोई एग्जीबिशन के हवाले से जो है कुछ भी काम नहीं था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने पीसी में लगाए, F9 पार्क में लगाया, लोक विरसा में हम लोग एग्जीबिशन लगाते थे जिसमें ना सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बल्कि फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान से जो सराउंडिंग के लोग थे उनको भी पता चलना शुरू हुआ, तो तमाम लोग आते थे। तो इस तरह देखें, एक तो ये हुआ कि लोगों में अवेयरनेस आई, दूसरी तरफ उनकी इनकम जनरेशन हुई। तो जब उनकी इनकम जनरेशन होना शुरू की तो उनकी जो फैमिलीज थी उन्होंने भी उनको परमिशन दी कि भाई ठीक है। फिर हमने देखा कि अब हम पाकिस्तान में तो हमने खासा काम किया, लोगों को भी इससे फ़ायदा हुआ, तो फिर इस्लामाबाद विमेन चेंबर ने बाहर के ममालिक की तरफ डेलीगेशंस जो है वो ले जाने के हवाले से सोचना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहला अपना डेलीगेशन 2010 में इंडिया लेकर गए थे। फिर इसके साथ साथ फिर हम यूरोपियन मार्केट्स में, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे और ममालिक में, यूरोप की ममालिक में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि आज हमारी जो ख़वातीन हैं तो वो CNG स्टेशन भी रन कर रही हैं, पेट्रोल पंप चला रही हैं, फार्मास्यूटिकल की कंपनीज चला रही हैं, फिर इसी तरीके से ट्रैवलिंग एजेंसी, टूरिज्म, मतलब यू जस्ट नेम द बिजनेस, और वो तमाम ख़वातीन इस्लामाबाद वुमेन चेंबर की मेंबर है। तो ये इसी वजह से है कि आपने लोगों को अवेयरनेस दी, लोगों को बेनिफिट्स बताए, तो लोग अट्रैक्ट हुए, तो उन्होंने आपको देखा और उसके बाद अपने अपने कारोबार को करने के बारे में सोचना शुरू किया। जब हमने शुरू में एग्जीबिशन सन 2010 में करना शुरू किया तो हमने जो करीबी गांव थे सिंध के और साउथ पंजाब के उन ख़वातीन को भी बुलाया, उनको हम फ्री स्टॉल्स देते थे, रहने की जगह देते थे। तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो जो एक मिडल मैन का कॉन्सेप्ट था ना कि जो मर्द हजरात वहाँ से लाते थे चीज़ें और यहाँ ला के महंगे दामों बेचते थे, तो वो ख़वातीन की डायरेक्ट एक्सेस हो गई लोगों के साथ। अभी रिसेंटली जो है हम लोगों ने मुल्तान में 120 ख़वातीन को ट्रेन किया, उसके बाद हम सखर गए, वहाँ पे ख़वातीन को ट्रेन किया, और पिछले साल हम लोगों ने 300 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन किया था। तो क्योंकि हम पाकिस्तान की तरक्की की बात करते हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी कि हम सब मिलजुल के इसके अंदर अपना अपना किरदार निभाएंगे और पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम लेके जाएंगे। और अब आपको लिए चलेंगे तारीख के झरोकों में, बात करेंगे यौम करादादे पाकिस्तान की। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का वो दिन है जब मुसलमानों ने अपनी शनाख्त और आज़ादी के लिए एक अलग रियासत के क़याम का फैसला किया। ये दिन इस पैगाम का हामिल है कि पाकिस्तान की बुनियाद कुर्बानी, इत्तेहाद और ईमान पर रखी गई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिदा अंजुम वसीम इकराम ने पैगाम पाकिस्तान देते हुए कहा है कि आज़ादी की जिद्दोजहद में तमाम मुसलमान खुलूस दिल से इस तहरीक का हिस्सा बने और कायदे आज़म का भरपूर साथ दिया। अल्लामा इकबाल भी इसमें बड़े उन्होंने हाथ उनका है कि उन्होंने भी ये बहुत सोचा कि मुसलमानों की बेहतरी के लिए है कि इनको एक अलग आज़ाद मुल्क दिया जाए। तो उस वक़्त जो अब कायदे आज़म की तहरीक की वजह से जो लोग माइल हो गए थे उनके लिए, वो बहुत खलूस दिल के साथ पाकिस्तान आज़ादी की करते थे और वो बिल्कुल साथ थे उनके। गवर्नमेंट नवाज शरीफ एसोसिएट गर्ल्स कॉलेज मंडी बहाउद्दीन में प्रिंसिपल साइमा इम्बरीन की ज़ेर सदारत आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम तहफ़्फ़ुज़े सार्फिन के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ने किया। मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज मंडी बहाउद्दीन प्रोफेसर इनायतुल्लाह कारी और डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर मोहम्मद फारूक थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत ज़िलाई तहफ़्फ़ुज़ सारिफ काउंसिल सार्फिन के हुकूक़ के लिए पूरी तरह से कोशा है। सार्फिन अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खरीदी गई अशिया की रसीद लाजमी हासिल करें। पंजाब सारिफ तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत सार्फिन अपनी शिकायत के इज़ाले के लिए ज़िलाई तहफ़्फ़ुज़ सारिफ काउंसिल से रुजू कर सकते हैं।
वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का है कहना कि दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है, मुल्क में अमन व अमान का क़याम यकीनी बनाएंगे। शकरगढ़ के गांव फुलवाड़ी में जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशी टोले के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। अनीस आवान की रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस वाकया सफाकाना दहशतगर्दी है, हमें अपने शुहदा पर फख्र है। उन्होंने कहा कि वाकये के बाद एक सियासी जमात ने झूठा प्रोपेगेंडा किया, मुल्क मजीद इंतशार और फसाद का मुतहम्मल नहीं हो सकता। एक सियासी जमात ने अपनी सियासत को मुल्क के मफाद, मुल्क के रियासत के मफादात से ऊपर रखा है और हर चीज़ में वो सियासत करने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ जाफर एक्सप्रेस जैसा बुज़दराना दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, दूसरी तरफ एक सियासी जमात ने वही बयानिया इख्तियार किया कि जो दहशतगर्दों का बयानिया था, वही बयानिया इख्तियार किया जो हिंदुस्तान के मीडिया का बयानिया था। एहसन इकबाल ने कहा कि किसी मुल्क की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की बदौलत मुआशी इशारिये मुस्बत हैं। मईशत बहाली की तरफ है, IMF का अभी वफ्द अपना काम मुकम्मल करके जा रहा है और उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया जो पाकिस्तान ने अपने अहदाफ हासिल किए हैं। इस मौके पे पाकिस्तान को किसी सियासी ग्रैंड अलायंस की ज़रूरत नहीं है, हमें उड़ान पाकिस्तान के अहदाफ को हासिल करने के लिए एक ग्रैंड मुआशी और इक्तसादी अलायंस की ज़रूरत है। इससे पहले वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने शकरगढ़ के गांव फुलवाड़ी में जाफर एक्सप्रेस वाक़े में शहीद होने वाले जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात की। वफाकी वजीर ने बहादुर सपूत के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने अपने हल्के का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं जहलुम से हमारे नुमाइंदे नईम अख्तर भट्टी। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कयानी ने अपने हल्के का दौरा किया और दीना जिला में मुख्तलिफ मकामात पर वफात पाने वाले अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत की और मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर ममलकत बराए रेलवे की साबिक़ चेयरमैन यूनियन कौंसिल चा खासा राजा कामरान एजाज की जानिब से इफ्तार डिनर में भी शिरकत की, जहाँ पार्टी कारकुनान ने भरपूर इस्तकबाल किया और मुस्लिम लीग नून के जिंदाबाद के नारे लगाए। बिलाल अज़हर कयानी ने अपने खिताब में मुस्लिम लीग नून का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जेलम में अमली तौर पर तरक्याती काम हो रहे हैं। जहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, जहाँ पे सफाई का निज़ाम है, उसमें भी आपको बेहतरी नज़र आई होगी, मज़ीद बेहतरी होगी। सड़कों का मामला है उसको हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में जो ब्लॉक बनाना है वो हम कर रहे हैं। एकेडमिक ब्लॉक की तामीर जारी है। दिल्ला जेलम रोड 100 किलोमीटर से ज़ायद सड़क है, उसका काम अब आगाज हो गया है। ये GT रोड भी बेहतर होगी, जिला जेलम को मोटरवे भी लगेगा, दिल्ला जेलम रोड भी मुकम्मल होगी, दीना को DHQ भी मिलेगा, सुहावा में वाटर सप्लाई स्कीमें भी लगेंगी। बिलाल अज़हर कयानी ने मजीद कहा कि हम जेलम के अवाम के लिए और भी इकदाम कर रहे हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेलम। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन हैं। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने 36 अजला से 6000 से ज्यादा शहरियों की राय ली। सर्वे की तफसील वर्दा सलीम से। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के जारी करदा सर्वे के मुताबिक मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के 62% शहरी न सिर्फ मुतमिन हैं, बल्कि शहरियों ने सूबे में तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमनो आमा के शोबों में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा है। सर्वे के मुताबिक 57% शहरियों ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस को बेहतर जाना, जबकि 24% ने कोई फर्क न आने की राय दी। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पंजाब की पहली वज़ीर आला हैं और इनकी लेगेसी कोई और नहीं है। इनकी लेगेसी जो है इनके वालिद मोहतरम और इनके चचा हैं और पंजाब के अवाम ने की जो 62% की तायीद है वो ये जाहिर करती है कि वो उनकी हुकूमत से मुतमिन है। सर्वे के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से 59% शहरी खुश हैं। इसी तरह 57% शहरियों ने मौजूदा वज़ीर आला मरियम नवाज के सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने के लिए हिकमत अमली को कामयाब करार दिया, जबकि 36% ने इस राय से इख्तलाफ किया। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हेल्थ में, उन्होंने एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ख़ास तौर पे नौजवानों के हवाले से उनकी हुकूमत के इक़दामात नज़र आ रहे हैं। जो स्पीड पंजाब हुकूमत ने इख्तियार की है
अगर इनके इस्लाहात और इक़दामात का सिलसिला जारी रहा तो यकीनन इससे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दामात से सूबे के आवाम बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात आवाम की जिंदगियों में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब सूबे की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। अवामी रिलीफ पैकेज निगहबान रमज़ान की तकसीम ज़िला डेरा गाजी खान के मुस्तहिक ख़ानदानों में जारी है, जिसके तहत अब तक ज़िले भर के 70,875 से ज़्यादा मुस्तहिक अफराद को पे ऑर्डर उनके घर की दहलीज तक पहुँचा दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद आसिफ रज़ाक अपनी रिपोर्ट में। पंजाब की माविन ख़ुसूसी सलमा भट्ट ने ज़िले इंतज़ामिया और रेवेन्यू स्टाफ के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर निगहबान रमज़ान पैकेज के पे ऑर्डर मुस्तहिकीन की घर की दहलीज पर पहुँचाए। हमारे कम आमदन वाले बहन भाई जो हैं हमारे अपने, उनको उनका हक उनकी दहलीज पर मिल रहा है। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत अब तक जिला डेरा गाजी खान में 70,875 रजिस्टर्ड घरानों को 10,000 के हिसाब से 70 करोड़ से जायद के पे ऑर्डर के घरों की दहलीज पर पहुंचा दिए गए हैं। की तरफ से हमें पैसे मिले हैं, हमने रमजान पैकेज का राशन डलवाया है। वजीर आला पंजाब का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशन लिया अपने घर का, वजीर आला पंजाब की बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी हमारे साथ ताउन की है। जिला भर के मुस्तहिक खानदान 10,000 रुपए का पे ऑर्डर मिलने पर बैंक ऑफ पंजाब में अपने मोबाइल पर आने वाला कोड और पे ऑर्डर दिखाकर 10,000 रुपए नकद वसूल कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहिक अफराद को निगहबान रमजान पैकेज के तहत इनका हक इनके घरों की दहलीज पर मिलने पर आवाम को सही मानों में रिलीफ मिल रहा है। आसिफ रज़ाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डेरा गाजी खान। रमज़ान पाकिस्तान ट्रांसमिशन की 15वें रोज़े की नशरियात में ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासादत पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। ज़िशान अहमद खान की रिपोर्ट। 15वें रोजे की ट्रांसमिशन का आगाज कारी उसामा रहमान की खूबसूरत आवाज में तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से हुआ। मेजबान अहसन खान ने तिलावत का तर्जुमा पेश किया, जबकि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांसमिशन में समा बांध दिया। उलमा इकराम ने अहले बैत से मोहब्बत और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत और उनकी जिंदगी के अहवाल से मोमिनों के दिलों को नूर से मुनव्वर किया। मौलाना इमरान बशीर और तकी महदवी ने कहा कि हमें ऐसे मुआशरे की तश्कील देने की अशद जरूरत है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की हर तौर पाबंदी की जाए, और उसी में हमारी कामयाबी है। ट्रांसमिशन में मारूफ अदाकारा सिद्रा नियाजी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मेजबान अहसन खान और जुगन काजिम के हमरा बच्चों को इस्लामी तारीख के सबक आमोज कहानियां भी सुनाई। ट्रांसमिशन में शेफ मुनज़्ज़ा ने मजेदार खाने की डिश बनाई, जबकि नशरियात में दीनी और तारीखी मालूमात पर मबनी क्विज का मुकाबला और नात गोई के मुकाबले हुए। प्रोफेसर मैमुना मुर्तज़ा ने वज़ाइफ के सेगमेंट में मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए वज़ाइफ बताए, जबकि डॉक्टर बिल्किस शेख ने रमजान मुबारक के दौरान सेहतमंदाना टोटके भी बताए। अज़ान मगरिब के बाद 15वें रोजे की ट्रांसमिशन अपने इख्तिताम को पहुंची। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कराची में रमज़ान मुबारक में सबसे ज़्यादा अवामी सतह पर सहर व अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। कराची में छोटी बड़ी सैकड़ों फलाही तंजीमें पूरे महीने शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर रोजादारों के लिए अफ्तारी का एहतमाम करती हैं। शहर कायद की मरकजी शाहराह एमेजिना रोड नुमाइश चुरंगी पर हजारों शहरियों के लिए सैर व अफ्तार में रिवायती खानों के बजाय नित नई और मशहूर कॉन्टिनेंटल डिशेज रखी जाती हैं, ताकि अवाम भी इनसे लुत्फानंदोज हो सके। यहाँ हर वो डिश खिलाई जा रही है जो एक महरूम शख्स या कोई भी मजबूर आदमी अपनी फैमिली के साथ शायद साल भर नहीं खा पाता, और कोशिश यही है आज भी यहाँ पर स्टीम मंदी है, और ये सारा सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जेडीसी की जानिब से यहाँ से आज़ाद कश्मीर तक जारी है। नुमाइश चुरंगी पर गुज़िश्ता दिनों में लाखों से ज़ायद अफराद सहरी में शरीक हो चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम, अवामी नुमाइंदे और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल हैं। इस जैसा इत्तेहाद और तंजीम मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी है। यहाँ सब अमन के साथ और सब मिल बैठ के अपनी फैमिली अलग अलग करके जेंट्स लेडीज अलग बैठ के आराम से सहरी करते हैं। सहरी का ये दस्तरखान आखिरी रोजे तक जारी रहेगा। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کے اوقات میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہ -7، استور زیارت -1، کالام اور پاڑہ چنار میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیل کی خبروں کا۔